hint of a possible post-poll alliance with RLD, saying the doors are still open for Jayant Chaudhary. Remember, the Jats are influential in almost 120 assembly seats in western Uttar Pradesh. They are a big factor on how western UP will vote this time around. बात ये पॉइंट कुछ मीटिंग के अंदर के जो बाहर नहीं बता सकते। माहौल सद्भावनापूर्ण वातावरण में, आत्मीय वातावरण में बातचीत हुई है, दोनों तरफ से संवाद हुआ है और आखिर में सबने उम्मीद जताई है कि पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। हमारी उम्मीद है, सबने आश्वासन दिया है। दोस्त जयंत चौधरी जी को लेकर जो उन्होंने बोला कि आगे बहुत सारी संभावनाएं हैं इलेक्शन के बाद, अभी तो उन्होंने क्योंकि एक घर चुन लिया है, इलेक्शन के बाद में बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, तो यहाँ के लोग, सारे समाज के लोग जैन से बात करेंगे और पार्टी का दरवाजा हमेशा उनके लिए खुला है। मुस्कुरा रहे हैं क्या? कोई बातचीत इस तरह की हुई? आप कह रहे हैं संभावनाओं को देख रहे हैं आप? तो सब खुलकर ही बात हो रही थी, कोई छुपाया हो तो बात हो ही नहीं रही थी। ठीक है, अपने परिवार के आपसी मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है यहाँ, और फिर एक बार दोबारा से गृह मंत्री जी ने अपील की है कि सभी जाट समाज एकमुश्त होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। हम जाट समाज कभी भी 2013 वाला मुद्दा नहीं भूला है, उसको आज भी याद है। आज भी वो जब रात को सोता है तो छाती पे हाथ धर के सोता है कि जो दंगे, जो बवाल, जो फसादे हुए हैं 2013 में, वो दोबारा पुनः ना हो जाए। तो हम जो राम को लेके आए हैं, हम उनको लेके आएंगे। I'd like to cut across for a quick comment by my colleague Poulomi Saha, who's been tracking this meeting. This meeting got over about 45 minutes ago. Poulomi, what went on behind the scenes that made Parvesh Verma come out and extend an invitation, a post-poll invitation to RLD Chief Jayant Chaudhary? Well, Preeti, he was just reiterating what Mr. Amit Shah in fact said inside that meeting. He said that Jayant अलग घर में चले गए हैं. That is what he said. But संभावनाएं हैं, आगे भी बात हो सकती है. He referred to the possibility of a post-poll alliance. He basically, when he spoke to the Jat leaders today, he did not close the doors on Jayant Chaudhary and RLD. So it was one of the big headlines coming out of that meeting, really. Jayant Chaudhary, of course, in an alliance with the Samajwadi Party, but Mr. Amit Shah there, of course, alluding to the fact that all doors are not shut on Jayant Chaudhary and a possibility of an alliance with the RLD, especially because he comes from a prominent Jat family. He has a hold over the Jat vote bank as well. Of course, it has not supported him in the past, the RLD, in the last couple of elections. The Jat vote has gone to the BJP in 2014, 2017 and 2019. But still, he happens to be a crucial figure, a top leader of the Jat community in Western Uttar Pradesh, and hence the BJP has not shut the doors on Jayant Chaudhary and RLD, and that's exactly what Mr. Amit Shah said in that meeting. And Parvesh Verma was only reiterating that point when he came out and he spoke with the media. Appreciate you joining us, Poulomi. We're going to come back to you for more updates there. You know, viewers, I'm going to quickly introduce our panel, but before we do it, I want to give you the importance of Western Uttar Pradesh and the importance of the Jat factor. They're just about 6 to 8% of, the total population where Uttar Pradesh is concerned, but they're influential on 120 seats of Western Uttar Pradesh. It's interesting because Western UP, if the Jats and the Muslims are the ones that pretty much decide who wins mandate in Western Uttar Pradesh. The BJP has traditionally always had the support of the Jat vote bank in Western Uttar Pradesh, but mind you, the Jats led the farmers' agitation in Western Uttar Pradesh this time around. There is bad blood, but this vote is now crucial to the Bharatiya Janata Party. I want to cut across to Anila Singh, Bharatiya Janata Party spokesperson, Ameek Jamai, Samajwadi Party spokesperson, Savit Malik, President, Kisan Union. Anila Singh, an invitation was given out by Parvesh Verma saying that there can be a post-poll alliance with Jayant Chaudhary. He's welcome to join our party fold after elections. Right now, he's in a new alliance. But the RLD has reacted, Anila Singh, and the RLD says that when the farmers were dying, all doors were shut to farmers. Now you're opening doors to Jayant Chaudhary because you know you're losing this election. My ram to everyone, Preeti, and see what Jayant Chaudhary ji, whatever he wants to say, he can say. But the truth is that he is in alliance with a political party which has never ever been good with Jats. It is a history, and everybody knows about that. The Samajwadi Party has never ever been good with Jats. I'm not talking about Bharatiya Janata Party, I'm talking about the Jats, because in today's date, a political party which was known as a Kisan Party,
honorable and the most beloved the Kisan Neta of Jat community or of everybody was Chaudhry Charan Singh. He formed this political party, and it was a Kisan party. And Chaudhry Ajit Singh, he reduced to a level of one particular community. And in today's date, if I talk about Jayant Chaudhary ji, I think today he's not totally with the Jats. Or I can say he's not with the Jats, nor he is with the farmers, nor he is with the Muslims. Then He's why nowhere. extend an invitation, Anila Singh? If he's with no one and he means nothing, why say that alliance is open to him after polls? We are always open for everyone. Because, we feel bad for one thing here, Preeti. Because Jayant Chaudhary ji, like he is heading a political party, which is known to be a Jat political party. And we know it very well that in 2013, what happened with the Jats of Western Uttar Pradesh, and especially if I talk about Muzaffarnagar. Everybody knows it. And after seeing everything, the way Samajwadi Party treated Jats, now Jayant Chaudhary has joined hands, or he is in the alliance with one political party. We have heard, yesterday also I was with I don't know. I think I wasn't there on your show. I was there on your show. I don't remember very well because I did so many shows on that. That a couple of the leaders from Samajwadi Party who are going to contest as well. He himself and the supporters of one particular candidate, they are saying कि जाटों में तो हम घुस भर देंगे. और जाटों में हम घुस भर देंगे मतलब जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब ये सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि घुस भर देने का मतलब क्या होता है. Not a single reaction from Akhilesh Yadav ji and not a single reaction from Jayant Chaudhary ji. All right. ऐसी क्या मजबूरी हो गई आपकी कि आपके जाटों के लिए बोला जा रहा है कि हम घुस भर देंगे. But Anila Singh, once again, no, that's the question. Anila Singh, the question is that, and I'll come right back to you. Let me go across to our other panelists. The question still remains, if he is inconsequential, if he doesn't represent the Jats, doesn't represent the Kisans, then why leave the door open to him? Because he's inconsequential. Why give him the time of day? But having said that, I want to bring in our other panelist as well. Savit Malik साहब, पहले आपके साथ के पास आऊंगी. चौधरी साहब, आप प्रेसिडेंट तो हैं किसान यूनियन के, जाट भी हैं, शामली से आते हैं. आज जो मीटिंग हुई अमित शाह जी की, बहुत सारे आप ही के सहयोगी थे जो उनके साथ बैठे हुए थे और बाद में आके कहा है कि वोट तो भाजपा के साथ है. प्रीति जी, जो लोग वहां पर गए थे, आप भी जानते हो जाटों में एक परंपरा है, खाप परंपरा. उसमें से खाप का कोई आदमी नहीं था और जो लोग गए थे वो सारे बीजेपी के पदाधिकारी थे. वो लिस्ट हम आपको भी दे सकते हैं. दूसरा, ऐसी क्या मजबूरी होगी इनको कि आज ये जाटों को याद कर रहे हैं? जब ये जाटों के सीने पे हरियाणा में गोली मार रहे थे तब इनको जाट नहीं आए. जब ये वेस्टर्न यूपी के जाटों का पूरे देश का आरक्षण छीन रहे थे जब इनको जाट याद नहीं आए. जब एक किसान नेता की हत्या करने का प्रयास 28 जनवरी को किया और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे तब इनको जाट याद नहीं आए. आज जब दरवाजे लिख दिया गया कि बीजेपी का घुसना मना है और इनके जो नेता है उनको गांव-गांव से दौड़ाया गया, शामली में दौड़ाया गया, कैराना में दौड़ाया गया, थाना भवन में दौड़ाया गया, बुढ़ाना में दौड़ाया गया, मेरठ में दौड़ाया गया, हर जगह इनको दौड़ाया जा रहा, तब इनको जाटों की याद आई है. 2017 में 77% जाटों ने इनको वोट दिया. 2019 में 91% लोगों ने वोट दिया. और ये जब दंगा हुआ मुजफ्फरनगर का, इन्होंने कहा ये हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं है, जो जाट मुस्लिम दंगा है जी. ये जाट को कभी हिंदू मानते हैं, कभी नहीं मानते. और इन्होंने एक अपने सर में कील ठोकने का काम किया. 2019 के चुनाव में जब चौधरी अजीत सिंह चुनाव हारे जी, तो इनके प्रवक्ता ने कहा हम चौधरियों की चौधरात खत्म कर देंगे. उसी दिन जाटों ने ठान लिया कि हम इनको इनकी जो सही जगह है वो दिखाएंगे. और आज इनके बड़े नेता झोली फैलाए गली गली घूम रहे हैं और लोग इनको सवित मलिक मेरे साथ बने रहिए. एक न्यूज ब्रेक आ रही है, अभी एक न्यूज ब्रेक आ रही है. Actually it's a news break which we already have, but I just want to reiterate. Anila Singh, Jayant Chaudhary has just tweeted after what Parvesh Verma said that doors open to him on Post Alliance. He's just tweeted and that's the news that we are breaking right now. न्योता मुझे नहीं, उन 700 प्लस किसान परिवार को दीजिए जिनके घर आपने उजाड़े हैं. अनिला सिंह, तो ठीक है, जयंत चौधरी साहब ने बिल्कुल ये ट्वीट किया है और ये तो समय बताएगा
प्रवेश वर्मा जी ने एक बयान दिया है। संजीव बालियान जी का भी बयान अगर आता तो मुझे और अच्छा लगता। संजीव बालियान जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं, बड़े चेहरा है जाटों में। तो प्रवेश वर्मा जी ने जो भी कहा उस पे जयंत चौधरी जी ने रिएक्ट किया है। पर हम भी देखेंगे, समय जो है, कहते हैं ना, समय बड़ा बलवान होता है जी। आज जयंत चौधरी जी जिसका दामन थामे हुए हैं, हमें भी पता है कि उनको बिल्कुल खुलकर सीटें भी नहीं दी गई। कई सीटों में तो सिर्फ फुटबॉल हो रही है। कई सीटों में जो है समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जो आरएलडी के सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं। तो जितनी स्पेस देनी चाहिए थी, जितनी फ्रीडम देनी चाहिए थी, जयंत चौधरी को अपनी पार्टी के लिए मिल ही नहीं पा रही। लेट मी इंट्रोड्यूस अमीक जमाई, स्पोक्सपर्सन भारतीय जनता पार्टी। अमीक जमाई, you know your alliance partner standing right next to you. अमीक जमाई, can you hear me? Yes, मैं सुन रहा हूँ। हाँ जी। Your alliance partner is standing right by you. Jayant Chaudhary has just tweeted that nothing doing. He's with the Samajwadi Party. But do you feel that the meeting today, you know, to quote a proverb, has led the cat amongst the pigeons? There is थोड़ी तो हरहराहट है कि समाजवादी पार्टी में पोस्ट पोल में अगर जरूरत पड़ी, then BJP's, the RLD can go with the BJP. नहीं, हम तो ये कह रहे हैं ना कि 700 जवान जो जिसमें जाट भी शामिल हैं जो शहीद हुए हैं, क्या उनके लिए भी दरवाजे भारतीय जनता पार्टी के खुले हुए थे? क्या वो भी जिंदा अपने घर वापस जा सकते थे? नहीं जा सकते थे। भारतीय जनता पार्टी के पास आज कोई नहीं है। ना अनुसूचित वर्ग के लोग हैं, ना अति पिछड़ा है, ना पिछड़े समाज के लोग हैं। जाट को तो ये हिंदू भी नहीं मानते हैं। जाट देखिए मूलतः एक बहुत ही स्वाभिमानी, मेहनतकश लोग हैं और किसानी उनकी पूरी ताकत है। चौधरी चरण सिंह साहब देश के प्रधानमंत्री रहे। सवाल ये बात है कि भारतीय जनता पार्टी की औकात क्या है कि इससे बड़ा पद आप क्या दे देंगे जाट समाज के लोगों को? जाट तो इस देश में प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जनता ने बनाया। और उन्होंने किसानी को, खेती को, चौधरी चरण सिंह साहब ने उत्तर प्रदेश में आरएलडी हो या समाजवादी पार्टी ने जिसको आगे बढ़ाया, हमने कहा कि भैया ये जो किसान है, तीनों कृषि कानून आपने वापस लिए। अमित शाह ने बोला था, देश के प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि हम 1 महीने के अंदर हाई पावर लेवल कमेटी बनाएंगे और उसमें सब किसानों को, जाटों को, सबको बुलाएंगे और उनका सारा मुद्दा हल कर देंगे। हमारे किसान यूनियन के नेता जो बैठे वो बताएंगे वो कमेटी कहां पर है, वो एमएसपी की बात कहां चली गई, वो किसानों का जो उनका अभी भी 4,000 करोड़ रुपए उनके बकाया है गन्ना किसानी के। तो ये अमित शाह 5 साल क्यों नहीं आए? 5 साल वो जाटों का सामना क्यों नहीं कर सके? क्योंकि वो, उनको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसे जमाई साहब, अनुपयोगी जमाई साहब, आप कह रहे हैं कि 5 साल कहां गए अमित शाह जी? चुनाव तो 2019 में भी हुए हैं ना, पूरा जाट समाज भाजपा के साथ ही गया था। नहीं, ये गलतफहमी है आपकी। ये गलतफहमी है कि पूरा जाट समाज उनके साथ चला गया। तो सवाल यह कि अगर जाट समाज चला गया था तो आपने उत्तर प्रदेश के, पश्चिम यूपी के किसानों को परेशान क्यों किया? आपने इतनी वहां पे शहादतें क्यों? गलतफहमी तो जमाई साहब नहीं है, क्योंकि गलतफहमी नहीं है, क्योंकि सीटें बताती हैं कि कितनी सीट भाजपा ने जीती है वेस्टर्न यूपी में। आपसे मेरा ये कहना है, अगर जाट समाज ने आपको वोट किया, आपने उनको आतंकवादी क्यों बोला? आपने उनको मवाली क्यों बोला? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला लखनऊ आओगे तो बक्कल तार देंगे, मतलब ये कि जाटों की चमड़ी उधेड़ लेंगे। क्या जब जाटों का इनकाउंटर हो रहा था, फेक इनकाउंटर, कहां पे थे ये श्री अमित शाह जी? कहां पे थे ये बाबा मुख्यमंत्री? आज जब ये जहाज डूब रहा है तो याद आई है जाट समाज की। लेकिन जाट समाज इस देश में हुकूमत कर चुका है, उत्तर प्रदेश में हुकूमत कर चुका है। क्या देंगे आप? हम तो पूछ रहे हैं कि 700 किसान जो जिंदा अपने घर जा सकते थे, क्या उनके दरवाजे आज भी खुले हुए हैं? चलिए जमाई जी, अनिला सिंह को आंसर करने दीजिए। अनिला सिंह, ओवर टू यू। देखिए, प्रीति, ऐसा है कि मुझे नहीं मालूम है कि अमित जमाई साहब को जाटों के विषय में कितना पता है, कितना नहीं पता है। ठीक है, जाट वो कौम होती है साहब जिसके अंदर राष्ट्रवादिता कूट कूट कर भरी हुई होती है। घर में एक बालक जो होता है ना, एक लड़का जो होता है खेती कर रहा होता है, दूसरा बालक यानी दूसरा बेटा जो है वो सरहद पे बंदूक लेकर अपने देश की रक्षा कर रहा होता है। ये वो कौम है। और आप मुझे बता रहे हैं कि जाटों के साथ किस तरह का ट्रीटमेंट किया है भारतीय जनता पार्टी ने। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की, अगर मैं विशेषकर बात करती हूँ, चुनाव उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मैं बात करती हूँ, यहाँ का जाट भूल गया है 2013 में जब अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए दो भाइयों की हालत आप लोगों ने क्या की थी? कितनी निर्ममता से, बर्बरता से उनकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद जब दंगे भड़काए गए
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के द्वारा, जी। तो आजम खान ने सीधे सीधे इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे कि जाट लड़के जेल में जाने चाहिए। आप लोगों ने तो 85 साल के वृद्धों को नहीं छोड़ा, ठूस दिया गया जेल में। कितने कितने आपको उदाहरण दूं मैं यहाँ पर। अनिला सिंह जी, कांड याद है अनिला आपको? सिंह जी, मौके मौके पर आप लोगों जी, अनिला सिंह जी, आपने प्रदेश मैंने में किया है जाट लाठी लेकर और आप लाठी लेके आपको दौड़ा रहा है, नहीं, और जब और वो वोट के जरिए उत्तर प्रदेश से आपका पलायन करा देगा। नहीं, ये ठीक नहीं है। मैं आई जस्ट वांट टू गो, चलिए अनिला सिंह जी आप अपना पॉइंट रखिए, देन आई वांट टू गो टू साबित मलिक साहब। नहीं आना था, पर समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाना था। चलिए, कैन आई गेट साबित मलिक? चौधरी साहब आप बताइए, आप शामली से आते हैं। चलिए जमाई साहब एक सेकंड। आपने किसानों को शहीद किया, किसानों को चलिए, अच्छा ऑलराइट, ओके। चलिए देखिए, कोई फायदा नहीं है ऐसे लड़ने का। मलिक साहब चलिए, कैन आई जस्ट गेट चौधरी साबित मलिक? मलिक साहब आप ही से एक सवाल पूछूंगी और फिर एक ब्रेक में जाऊंगी कि आप वहां से आते हैं, शामली से आते हैं, आप कह रहे हैं कि जो आप में है वो तो आप किसान यूनियन रिप्रेजेंट करते हैं, गुस्सा है, पर इस बार हमेशा से अब तक जाट ने भाजपा को वोट दिया है 2014, 2019, 2017, तो अब क्या डिफरेंट होगा इस बार? देखो प्रीति जी, हम लोग यहाँ पर डिबेट में 3 लोग जाट हैं। अनिला जी भी जाट है, आप भी हैं, हम भी हैं। सर मैं तो पत्रकार हम हूं। लोग, हाँ पत्रकार यहाँ हैं, पे पत्रकार की कोई कास्ट हैं। नहीं होती है जी, सब जो है वो है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो अनिला जी कह रही थी, इन्होंने कहा था दंगे के अंदर जो मुकदमे हुए हैं हम सब वापस कराएंगे, क्या इन्होंने करा दिए? आज भी बहुत सारे लोग जेलों में बंद है, उन पर मुकदमे चल रहे हैं। और मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि जाटों ने जो विश्वास इनके ऊपर किया, इन्होंने उसको तोड़ने का काम किया, ठगने का काम किया। Anila Singh, 10 seconds, and I'm going to close the debate क्योंकि it is 2 against 1. I will give you the closing. Please go ahead. नहीं, मैं मलिक साहब से ये कहती हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी को बोल रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी ने ठगा, धोखा दिया, ये किया। मुझे ये बता दो, समाजवादी पार्टी ने आपके साथ बहुत प्यार से सलूक किया क्या जाटों के साथ? मुलायम सिंह यादव जी से लेकर अखिलेश यादव जी तक आप देख लो, आप नौकरियों में देख लो, आप क्षेत्रों में देख लो, इन लोगों ने कैसे हम लोगों के साथ व्यवहार किया हुआ है। आपने ठगने का काम किया, आपने किसान को लूटने का काम किया। I thank all 3 of our panelists. Appreciate all 3 of you for joining us. There's no point getting into a debate where nobody can hear anyone. We're going to bow out of this debate. Thank you all 3 of you for joining us, but the debate will continue. 10th February, viewers, is when this crucial vote bank is going to vote. Western UP votes on the 10th of February. There isn't much time. And now, you would see in the days to come, there will be a clamor to woo the Jat vote. A quick break to stay with me. Up next is my colleague Gaurav Sawant.